آپ نے اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں کی اور کتنے پیسے بطور چندہ وصول کیے؟ سیف الرحمان کے ذریعے قطر سے آپ کو کتنے پیسے وصول ہوئے؟ ڈان لیگ کے پیچھے کون تھا؟ آج اعتراف کر لیا آپ نے، تو پہلے انکار کیوں کیا تھا؟ دشمن ملک کے سربراہ مودی کو ملک سے باہر فون کیوں کرتے تھے آپ؟ میاں صاحب اسامہ سے کتنا چندہ لیا؟ مودی کو کتنے فون کیے؟ قطر سے کتنی رقم الیکشن کے لیے لی؟ پہلے ڈان لیگ سے انکار کیوں کیا؟ بے نظیر کی کردار کشی کے لیے خط کیوں جاری کیا؟ اجمل قصاب کے گھر کا پتہ کس نے دیا؟ شیخ رشید کے نواز شریف سے 10 سوالات، کہا ڈر ہے نون اور شین میں سے تو ہی نہ نکل آئے۔ نون لیگ والے آرمی چیف سے ملاقات نہیں ملاقاتہ کرتے ہیں۔ اداروں پر نواز شریف کی تنقید افسوسناک ہے۔ نون لیگ نے ہمیشہ منافقت کی سیاست کی، اب عوام ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ شفقت محمود کا لاہور میں خطاب، نواز شریف نے مودی کا یار ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اسپیکر پرویز الہی کی گفتگو، لیگی ایم پی اے مناظر رانجھا کاف لیگ میں شامل ہو گئے۔ عمران خان کو 2018 کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے، ملک کو ون پارٹی اسٹیٹ نہیں بننے دیا جائے گا، احسن اقبال کی للکار، کہا حکومت شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، مقصد گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی ہے، پنجاب کے بلدیاتی الیکشن میں بھی دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کے اثاثوں کی کھوج، نیب نے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر محکموں کو خط لکھ دیے، جائیداد، گاڑیوں اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے، ملکی معیشت کی بحالی کے لیے کراچی کو ترجیح دینا ہوگی، رہنما ایم کیو ایم عامر خان کی گفتگو، متحدہ والے مرنے مارنے کے نعرے لگا رہے ہیں، کسی کو کراچی کی فکر نہیں، مصطفیٰ کمال کا بیان، کہا سب حکومت گرانے اور بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دہشت گردی کا ساتھ، ہندوستان کے 44 بینک منی لانڈرنگ میں ملوث نکلے، $1.5 بلین کی منی لانڈرنگ ہوئی، انڈین پریمیئر لیگ بھی ملوث، عالمی ادارے نے مودی سرکار کا نکاح نوچ پھینکا، کشمیر میں ہندو دہشت گردوں کو منظم کیا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کو اقوام متحدہ میں خطاب کا حق نہیں، اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ، نریندر مودی کے خلاف نعرے، مظاہرین کا کہنا تھا کہ مودی اقوام متحدہ کی قراردادوں کو روند رہے ہیں۔ پاکستان کے ماحول دوست اقدامات، ورلڈ اکنامک فورم نے چیمپئن فار نیچر کے اعزاز سے نوازا، معاون خصوصی امین اسلم کو ایوارڈ وصول کرنے کی دعوت، امین اسلم کہتے ہیں کہ اعزاز وزیر اعظم کی پالیسیوں کی بدولت ملا۔ ملک میں کورونا کے مزید 566 کیس سامنے آ گئے، 24 گھنٹے میں 7 افراد جاں بحق، تعداد 6451 ہو گئی، نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آٹے کی قلت دور نہ ہو سکی، ملتان میں بنائے گئے پوائنٹس پر آٹا دستیاب نہیں، سیالکوٹ میں بھی آٹا نایاب، لوگوں کی لمبی قطاریں، فیصل آباد، خانیوال میں عوام آٹے کے لیے مارے پھرنے لگے۔ آٹا اتنا مہنگا ہے نا، بول تو کہیں مل ہی نہیں رہا، اگر کہیں مل رہا ہے تو بہت زیادہ مہنگا مل رہا ہے۔ آٹا جو ہے توڑوں والا وہ تو بالکل نہیں مل رہا، نہ 10 کلو کا نہ 20 کلو کا۔ جو پہلے 850 کا 900 کا توڑا تھا وہ مل ہی نہیں رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں 0.32% اضافہ ہوا، شرح 8.8 تک پہنچ گئی، حکومت روز دلاسے دیتی ہے اور مہنگائی روز بڑھ جاتی ہے، عوام کی دہائی۔ 60 70 120 روپے کا گھی کا پیکٹ ملتا تھا، آج وہ 200 250 روپے میں مل رہا ہے۔ مہنگائی اتنی ہو رہی تھی کوئی حد نہیں۔ پوزیشن یہ ہوگی کہ ہر بندے کا کھانا پینا محال ہو گیا، سبزی اتنی مہنگی ہو گئی کہ غریب آدمی ایک ٹائم کی سالن نہیں پکا سکتا، اتنا مہنگائی ہے کہ سبزی کے ریٹ جو ہے نا عروج پہ ہے۔ ماس نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور ارشد اور میں ہوں سعدیہ سامسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، کرتے ہیں بلٹن کا باقاعدہ آغاز۔ اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں کی، کتنا چندہ لیا، قطر سے الیکشن کے لیے کتنے پیسے ملے، شیخ رشید احمد نے نواز شریف سے 10 سوالات کے جوابات مانگ لیے۔ پوچھا، نواز شریف بتائیں کہ اجمل قصاب کے گھر کا پتہ رائٹرز کو کس نے دیا، قطر سے الیکشن کے لیے کتنے پیسے ملے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی ادارے کا ترجمان نہیں، مشورہ لیتا نہیں بلکہ دیتا ہوں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر میں گزشتہ 36 سالوں میں
किसी आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की, डर है नून और शीन से कोई तोता लीग भी ना निकल आए। मैं नवाज शरीफ साहब से सवाल करता हूं, आपने उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और कितने पैसे बतौर चंदा वसूल किए? 213 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया आपने और सैफुर रहमान के जरिए कतर से आपको कितने पैसे वसूल हुए? डॉन लीग के पीछे कौन था? आज इतराफ कर लिया आपने, तो पहले इनकार क्यों किया था? दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप? जितनी कॉलें आपने मोदी को बाहर से की उनकी तादाद बताएं और उसका एजेंडा बनाएं। अजमल कसाब के घर का एड्रेस राइटर को किसने दिया और वो कौन लोग थे जिसने हिंदुस्तान को अजमल कसाब का डेटा प्रोवाइड किया? बेनजीर की किरदार कुशी के लिए पीटर गैलब्रेथ का लेटर हुसैन हकानी के दस्तखतों से किसने जारी किया? मैं किसी इदारे का तर्जमान नहीं हूँ, मैं अल्लाह के फजलो करम से इन सब से सीनियर हूँ। मैं इन लोगों को मशवरे देता हूँ, लेता नहीं हूँ। जुबैर साहब ने 36 सालों में कोई मुलाकात नहीं की, बिल्कुल कोई। कमर जावेद बाजवा साहब ने ये नहीं कहा कि मैं वहाँ आ रहा हूँ या जा रहा हूँ। 36 साल से कमर जावेद बाजवा साहब की जुबैर से कोई मुलाकात नहीं। ये टैंटा फिश होंगे, लोगों को पता है कि ये वो नहीं जो दिखाई देते हैं। मुझे तो रात का शक पड़ रहा है कि नून और शी में से कोई तोय ही ना निकल आए, कोई तोता लीग ना निकल आए। उधर एहसन इकबाल ने दावा किया है कि मुल्क में वन पार्टी निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन की आवाज़ दबाने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहती है। इसका मकसद गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली है। इमरान खान को 2018 का खेल दोबारा नहीं खेलने देंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नून लीगी रहनुमा ने कहा कि पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में भी धांधली की तैयारी हो रही है। नवाज शरीफ का हर जुमला और हर लफ्ज पार्टी के लिए अहम है। ये जो हुकूमत है और जो इसका इंतकाम है वो इतना अंधा हो गया है कि वो पाकिस्तान को एक फैशिस्ट रियासत और वन पार्टी रियासत बनाने के एजेंडे पे काम कर रहा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के बाद नैब की तरफ से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश खुल्लम खुल्ला नैब गर्दी नहीं है बल्कि सियासी दहशत गर्दी भी है, जिसका मतलब ऑपोजिशन की आवाज को दबाना है। शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली की आगाज करना है। हम इमरान अहमद नियाजी को इजाजत नहीं देंगे कि वो 2018 का खेल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में खेल सके। एपीसी के अंदर मुस्लिम लीग नून के कायद का खिताब हर मुस्लिम लीग नून के कारकुन के जज्बात की तर्जुमानी है। नवाज शरीफ साहब का हर लफ्ज हर जुमला पार्टी के हर कारकुन के लिए मोहतरम है और उस पर वो पहरा देते हैं। नून लीग ने हमेशा मुनाफिकत की सियासत की। नवाज शरीफ के इदारों पर तनकीद अफसोसनाक है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि नून लीग ने करप्शन से मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अवाम अब नून लीग पर एतमाद नहीं करती। अपोजिशन की ख्वाहिशात तो बहुत हैं, दमखम नहीं है, अवाम में कोई पजीराई नहीं है। नून लीग की आप ज़रा हालत देखें कि एक तरफ उनका जो कायद है लंदन में बैठ के 1 घंटा हशाश बशाश तकरीर करने के बाद पाकिस्तान के अदारों को हदफ तनकीद बनाता है और उसके बाद पता चलता है कि उनके अपने लोग अपनी दरखास्त पे खुफिया तौर पे आला फौजी अफसरान से मीटिंग कर रहे हैं। तो ये किस किस्म की मुनाफिकत है? और ये मुनाफिकत आपको, ये आज की बात नहीं है। अगर आप पिछले 30-40 साल की सियासत पे नजर डालें तो आपको नून लीग की और उसकी लीडरशिप की और नवाज शरीफ साहब की इस किस्म की हरकत और मुनाफिकत आपको नजर आती रहेगी। पब्लिक में कुछ कहना, प्राइवेट में कुछ करना। मेरा ख्याल है अवाम को अब इस बात की समझ आ गई है। हमें यकीन है कि अवाम की कोई सपोर्ट इनको हासिल नहीं है। परवेज इलाही का कहना है कि फौज के खिलाफ बोलकर नवाज शरीफ ने मोदी का यार होने का सबूत दिया है। उन्होंने ये गुफ्तगू लीगी रुकन सूबाई असम्बली मनाजिर रांझा की काफ लीग में शमूलियत के मौके पर की। लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और कामिल अली आगा से एमपीए मुस्लिम लीग नून मनाजिर अली रांझा और उनके भाई समेत दीगर ने मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम ने अक्सर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करने के लिए नवाज शरीफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फौज के खिलाफ बोलकर साबिक वजीर आजम ने मोदी का दोस्त होने का सबूत दे दिया है। चौधरी परवेज इलाही ने मियां मजहर अली रांझा को कोर्ट मोमिन के लिए तहसील नाजिम का उम्मीदवार नामजद कर दिया है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि नैब ने अदालती अहकामात पर तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की तलाश शुरू कर दी है। LGA समेत दीगर महकमों को खतूत इरसाल कर दिए। तोशाखाना रेफरेंस में नैब मुतहर्रिक नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की खोज शुरू कर दी। नैब ने LDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, एक्साइज डिपार्टमेंट और निजी बैंक से तलब कर ली। खत में नवाज शरीफ की जायदाद से मुतल्लिक तफसीलात मांग ली। लाहौर में नवाज शरीफ के 1550 कनाल से जायद अराजी की दस्तावेजात भी पेश करने की हदायत की गयी। लाहौर में 4 मुख्तलिफ मुकामात पर जमीन और अपर माल में जायदाद की तस्दीक करने की हदायत भी की। नैब ने मफरूर मुलजिम के ज़ेरे इस्तेमाल मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और 2 ट्रैक्टर का रिकॉर्ड भी महकमा एक्साइज से मांग लिया। निजी बैंक से अकाउंट की तफसीलात भी तलब की गयी। नैब के मुताबिक तमाम महकमों से रिकॉर्ड तलब करके मजीद कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बना रही हैं और अभी आपको बता रहे हैं कि मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए कराची को तरजीह देना होगी। रहनुमा MQM आमिर खान कहते हैं कि कराची की मईशत बेहतर होने से पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। तमन्नाएं थी कि MQM कमजोर हो गई है और MQM खत्म हो गई है, उसकी तमन्नाएं ही रह गई हैं और इंशाल्लाह MQM अपनी पूरी आबदाब से उसी तरह अपनी जगह खड़ी है और इशूज़ के ऊपर जो है वो आप फर्म होके खड़े हैं और उसके ऊपर हम काम करते रहेंगे। जिस तरह हमने प्रोग्राम में सूबे की डिमांड की है और आर्टिकल 140 है, दीगर इशूज़ हैं, कराची के मसाइल हैं, उनके ऊपर अब इसी तरह आवाज़ बुलंद होती रहे। दूसरी जानिब चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची में बारिश के बाद सबको कराची का ख्याल आया, मगर APC के बाद सब हुकूमत गिराने और संभालने में लग गए हैं। फिर बारिश होगी तो उन्हें कराची का ख्याल आएगा। चंद दिनों पहले की बात है कि कराची के मसाइल हॉट इश्यूज थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेकर आर्मी चीफ से लेकर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान आकर कराची के इश्यूज पर बात कर रहे थे। एक वाक़या हुआ अफसोसनाक, लाहौर में कौम की एक बेटी के साथ जो है वो ज्यादती हुई, मीडिया उस तरफ डाइवर्ट हो गया, सारा कराची का मसला जो है वो रह गया। उसके बाद APC हो गई, सारी बातें अब APC के ऊपर है कि भाई कौन हुकूमत गिराएगा, कौन, एक दूसरे से जो है वो गोलाबारी चल रही है लफ्ज़ों की। मसाइल जो है वो जूं के तूं वहीं रहेगा। अब दोबारा जब बारिश होगी, जब दोबारा लोग मरेंगे, जब तबाही बर्बादी दोबारा होगी, दोबारा कैमरे लगेंगे, दोबारा फिर ड्रामे शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। उसी तरह की कहानियाँ रहे 50 सालों से 60 सालों से ऐसे ही